Hello, everyone. A very warm welcome to all of you. I hope all of you are doing good. Today, we are going to cover our next topic from Indian society module that is part of GS Paper 1. And the topic we are going to cover under this section is poverty and developmental issues. So, let's find out what all subtopics we are going to look into as per UPSC syllabus. So first one is concept of development and poverty. So we'll establish and make sure that our concepts are clear, and then we'll look into types of poverty. Thereafter, we'll find out the measurement of poverty and about poverty line. Then we'll look into causes of poverty, and we'll move ahead with poverty as a social problem, then socioeconomic spread of poverty, and then consequences of poverty. We'll look into how inequality, continuation of vicious cycle are the consequences of poverty and who are the worst affected by poverty. Then we'll find out about the problem of rising urban poverty and what all poverty alleviation initiatives are there. And then we'll find out policy shift about the policy shift from trickle down economics to inclusive or pro-poor development to reduce poverty. We'll find out how this all took place, and then we'll establish relations between poverty reduction, development, and we'll find out what is this nexus that is called poverty inequality development nexus. Okay, so let's start. First one is concept of development and poverty. Now, what is development? Multitude of meanings have been attached to the term development. बट हम एक वो देख लेते हैं, एक ऑलमोस्ट कंप्लीट सी डेफिनेशन में अपने लिए एस्टेब्लिश कर लेते हैं. It is referred to as quantitative and qualitative changes in the economy and social sectors such as development of human capital, critical infrastructure, regional competitiveness, environmental sustainability, social inclusion, health, safety, literacy, etc. ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन फॉर डेवलपमेंट. नेक्स्ट देख लेते हैं पॉवर्टी. पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना इन विच अ पर्सन और अ कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज and essentials for maintaining a minimum standard of living. तो एक minimum standard of living maintain करने के लिए भी जब किसी person के पास financial resources ना हो और उसके implications more than one dimension में हो, more than one dimension फिनोमिना हो जाए, जैसे कि फूड पे भी उसका इफेक्ट आए, फिर एजुकेशन पे भी, फिर शेल्टर पे भी, तो उन सब में मिनिमम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए, मतलब ओवरऑल एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए भी जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो जाए तो उसे पॉवर्टी कहते हैं. लेट्स लुक इनटू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी. जो पॉवर्टी है उसे टू टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. First one is absolute poverty. It refers to a condition where a person does not have a minimum amount of income needed to meet the minimum requirements for one or more basic living needs over an extended period of time. It may be calculated in monetary terms, nutrition, attainment, or calorie terms. For example, homeless people living on the streets, families, and that cannot afford to buy food to feed themselves and their children are also examples of absolute poverty. तो absolute poverty रेफर करती है उस कंडीशन को जहाँ पे एक पर्सन के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम भी नहीं है अपनी किसी भी तरीके की नीड को मेंटेन करने के लिए. तो यहाँ पे बेगर्स और होमलेस लोग आ जाते हैं इस कैटेगरी में. उसके बाद देखते हैं relative poverty. It occurs when people do not enjoy certain minimum level of living standard as determined by the government and enjoyed by bulk of population that vary from country to country, which is said to be increasing, may possibly never be eradicated. तो क्या है कि ये एक तरीके से गैप इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इनकम को रेफर करती है. रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव का मतलब भी होता है कि इन कंपैरिजन टू समथिंग, तो कंपैरेटिवली एक
ग्रुप ऑफ पीपल के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जब एक दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही कम हो, तो रिलेटिव इज ऑलवेज इन कंपैरिजन टू समथिंग। तो इस तरीके से हम ये दो ग्रुप ऑफ पीपल को कंपेयर कर सकते हैं। तो जब इन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो गैप हो वो मतलब वेरिएंसेस हो या गैप ज़्यादा हो, यहाँ पे लिखा भी है कि इट इज सेट टू बी इंक्रीजिंग, तो गैप तो पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर एंड रिच आर मोर बिकमिंग मोर रिच, ये फ्रेज तो आपने सुना ही होगा। तो ऐसी पॉवर्टी को हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, जहाँ पे एक जो बल्क में है, जैसे कि मिडिल क्लास जो है उसे कह सकते हैं हम कि ये बल्क पॉपुलेशन है ना। तो इनसे जो कम वाले हैं वो रिलेटिव पॉवर्टी की कैटेगरी में आते हैं। जो मिडिल क्लास में, इनफैक्ट लोअर मिडिल क्लास में कहूँगी, मिडिल क्लास में भी दो सेक्शन है। जो लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे में आते हैं, डेली वेज अर्नर्स हो गए, वो लोग रिलेटिव पॉवर्टी की कंडीशन को फेस करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन। Broadly, the poverty of a given society is expressed in terms of malnutrition, low consumption expenditure, low income, chronic illness, or poor health, illiteracy, unemployment, unsanitary housing conditions, poor resources, high disparity income distribution. तो मेजरली और ब्रॉडली जो पॉवर्टी है उनके क्या डायमेंशंस होते हैं, उसको किस चीज उसको मेजर करने के क्या डायमेंशंस होते हैं या क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो है माल न्यूट्रिशन। फिर हो गया लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। माल न्यूट्रिशन तो हमारा बोथ ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन आर पार्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। ओके, देन लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कि कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंडिचर जो स्पेंडिंग है, कंजम्पशन पे जो स्पेंडिंग है वो कम हो रही है। वो कब कम होती है? जब हमारे हाथ में कैपिटल नहीं होती है, लिक्विडिटी जो है हमारे पास नहीं होती है, जो कैश है वो नहीं होता है इन हैंड, तो तब लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का केस रहता है, विच इज उसके बाद ही साथ के साथ लिखा है लो इनकम। उसके बाद क्रॉनिक इलनेस भी एक पार्ट होता है पॉवर्टी के, पैरामीटर होता है पॉवर्टी के मेजरमेंट में, क्योंकि जो सोसाइटी क्रॉनिक इलनेस को फेस करती है, इसका मतलब वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे नहीं है, विच इज इंडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। क्रॉनिक इलनेस और पुअर हेल्थ, देन इलिटरेसी। अगर इलिटरेट लोगों की पॉपुलेशन है तो वहाँ पे पॉवर्टी भी होगी, क्योंकि जो गरीब है वो इलिटरेसी की तरफ ऑब्वियसली जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं है टू एक्वायर एजुकेशन और टू गेट एजुकेटेड। और जो I'm so sorry, और जो एजुकेटेड ही नहीं है वो अगेन उसके पास बहुत ही ना के बराबर मीन्स रह जाते हैं टू डेवलप फर्दर और टू अर्न लाइवलीहुड। एक तो वो एजुकेटेड नहीं है, ऊपर से गरीब है, तो इट ऑल्सो अगेन लीड्स टू पॉवर्टी। खैर, विशियस साइकिल के बारे में हम आपसे दोबारा बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर। तो उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इस ये भी एक फैक्टर है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है सोसाइटी में, इसका मतलब गरीबी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब सोर्सेज ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड आर लेस तो फिर पैसा आएगा कहाँ से, राइट? अनसैनिटरी हाउसिंग कंडीशंस, ये अगेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात आ गई। पुअर रिसोर्सेस, हाई डिस्पैरिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाई डिस्पैरिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि फ़र्क बहुत ज़्यादा ना, वेरिएंसेस बहुत ज़्यादा होने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में। किसी के पास बहुत कम, किसी को बहुत कम मिल रहा है, किसी को बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। तो प्री इंडिपेंडेंस में पॉवर्टी के क्या एस्टिमेट्स रहे हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन टेबुलर फॉर्म में जो है वहाँ पे मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेरी फेमस, एमसीक्यू के लिए भी ये आपको याद रखना चाहिए। Initially, it was Dadabhai Nauroji who estimated poverty in the second half of 19th century. He concluded the baseline in 1867-68 price, which was based on the cost of a subsistence diet consisting of rice or flour,
दाल, मटन, वेजिटेबल्स, घी, वेजिटेबल ऑयल एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले पॉवर्टी को मेजर करने का जो अटेम्प्ट था इंडिया में, इंडिया के लिए, वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, और उसमें उन्होंने कुछ फूड आइटम जैसे कि राइस और फ्लोर, दाल, मटन, वेजिटेबल्स, घी, वेजिटेबल ऑयल और सॉल्ट को कंसिडर किया था। फिर 1938 में क्या हुआ, कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस ने सेटअप किया एक नेशनल प्लानिंग कमेटी, एनपीसी, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। और जो कमेटी ने क्या किया कि द कमेटी रिगार्डेड irreducible minimum income between 15 and 25 per capita per month at pre-war prices। तो प्री-वॉर प्राइसेस मतलब वॉर से पहले के प्राइसेस के अकॉर्डिंग 15 से 25 रुपए पर कैपिटा को मिनिमम इनकम माना गया। उस टाइम के अकॉर्डिंग 15 से 25, आप समझते हैं कि उस टाइम पे करेंसी की वैल्यू ज़्यादा रही थी। अभी के टाइम से इन्फ्लेशन अपने एवेंचुअली करेंसी की वैल्यू काफ़ी रिड्यूस कर ही दी है। द बॉम्बे प्लान 1944। Bombay Plan proponents had suggested a poverty line of ₹75 per capita per year। देखिए यहाँ पे आके 75 रुपीज हो गया पर कैपिटा पर ईयर, जो इनकम है, मिनिमम इनकम। द बॉम्बे प्लान was a set of proposals of small group of। तो ये मैं बता देती हूँ कि बॉम्बे में बिजनेस मैन जो लोग हैं या इन्फ्लुएंशियल और लोग थे, उनकी एक फेडरेशन थी जिसने बॉम्बे प्लान प्रपोज किया था फॉर, मतलब इट वाज अ प्लान ऑफ डेवलपिंग इंडिया फर्दर। लीडर्स इन बॉम्बे ऑफ द डेवलपमेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ओके, अब देख लेते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब ये तो 1944 तक तो हो गया हमारा प्री इंडिपेंडेंस। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद देख लेते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट्स किस तरीके के रहे हैं। प्लानिंग कमीशन इन 1962। प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप 1962 constituted by the planning commission formulated separate poverty lines for rural and urban areas, rupees 20 and 25 per capita per year respectively। तो प्लानिंग कमीशन जो 1962 में आई, उसने क्या किया कि अर्बन और रूरल जो एरियाज थे उनके लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट्स का फॉर्मेशन किया, जो कि थे रूरल के लिए ₹20 पर कैपिटा पर ईयर और 25 था पर कैपिटा पर ईयर फॉर अर्बन। वाई के अलग कमेटी आई 1979 में। By 1979, it was decided that poverty should be measured precisely based on starvation। तो 1979 में क्या डिसाइड हुआ कि भूखमरी जो होती है, starvation होती है, जहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिलता है एडुकेटली, ऐसी पॉवर्टी की को बेसिस, ऐसी सिचुएशन को, ये कंडीशन को, स्टार्वेशन को बेसिस बनाया जाए और प्रिसाइसली उसके बेसिस पे पॉवर्टी को जो है मेजर किया जाए। Committee was constituted which gave its recommendation as the people consuming less than 2100 calories in the urban areas or less than 2400 calories rural areas are poor। तो क्योंकि इन्होंने क्या किया, कैलोरी इंटेक के बेसिस पे, कैलोरीज इंटेक के बेसिस पे डिफाइन किया कि 2100 से नीचे, less than 2100 in urban areas और less than 2400 in रूरल एरियाज, जो भी कैलोरीज इंटेक करते हैं वो पुअर की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट इज लकड़वाला कमेटी 1993। तो 1993 में 1979 में हुआ था वाई के अलग कमेटी का फॉर्मेशन, फिर उसके बाद 1993 में आए लकड़वाला कमेटी। In 1993, an expert group constituted to review methodology of poverty estimation। तो इस ग्रुप को क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जो मेथडोलॉजी थी पॉवर्टी को मेजर करने की, पॉवर्टी को एस्टिमेट करने की जो मेथडोलॉजी थी उसके ऊपर रिव्यू करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, या क्या वो होनी चाहिए, ये सब चीज़ों पे मतलब विचार करने के लिए लक्कड़वाल कमेटी बनाई गई, chaired by D.T. Lakkadwala, made the following suggestions।
क्या क्या सजेशंस रहे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कैलोरी कंजम्पशन एज अर्लियर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो जो वाई के अलग कमेटी ने सजेस्ट किया था कैलोरी बेसिस पे वही सेम रहेगा। स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन शुड बी कंस्ट्रक्टेड एज दीज शुड बी updated using the consumer and these should be updated using the consumer price index of industrial workers CPI-IW in urban areas and consumer price index of agricultural labor CPI-AL in rural areas। देखो तो स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन का इन्होंने एक फॉर्मुलेशन का सजेशन दिया कि हर स्टेट में अपनी अपनी पॉवर्टी लाइन स्पेसिफाइड होनी चाहिए और किस बेसिस पे होनी चाहिए। जो रूरल एरियाज है उनका होना चाहिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बेसिस पे CPI-AL और जो अर्बन एरियाज हैं उसका होना चाहिए CPI-IW के बेसिस पर पॉवर्टी लाइन का पॉवर्टी लाइन डिफाइन होनी चाहिए विच विल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, तो देखते हैं फिर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ स्केलिंग ऑफ पॉवर्टी estimates based on national account statistics. This assumes that the basket of goods and services used to calculate CPI-IW and AL reflect the consumption pattern of the poor. तो डिसकंटिन्यू करने के लिए क्या इन्होंने बोला कि स्केलिंग ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को डिसकंटिन्यू किया जाए, क्योंकि सजेस्ट क्या कर दिया था तो पहले हो इसके बेसिस पे रहा था नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स पे, अब इन्होंने किस पे शिफ्ट होने के लिए बोल दिया था CPI-IW फॉर अर्बन एंड CPI-AL फॉर रूरल एरियाज और स्टेट टू स्टेट बेसिस पे पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए बोला था। नेक्स्ट आ जाता है सुरेश तेंदुलकर कमेटी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005। अब देखते हैं क्या था। इन 2005 सुरेश तेंदुलकर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था। द करेंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी आर बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी। तो आज के टाइम पे जो पॉवर्टी के एस्टिमेट्स हम फाइंड आउट करते हैं वो इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बेस्ड हैं। दिस कमेटी रिकमेंडेड टू शिफ्ट अवे फ्रॉम calorie based model and made the poverty line somewhat broad based by considering monthly spending on education, health, electricity and transport। तो केवल और केवल खाने को नज़र में ना रखकर और भी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड करने के लिए सजेस्ट किया जो थी एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट। इट सपोर्टेड न्यूट्रिशनल इंटेक रादर देन कैलोरी इंटेक। तो कैलोरी काउंट की जगह न्यूट्रिशनल काउंट पे इन्होंने एम्फोसिस किया। द कमेटी ऑल्सो ड्रू लाइन बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग कि कहाँ की क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है उसके बेसिस पे एक लाइन ड्रॉ की। द तेंदुलकर पैनल स्टिपुलेटेड अ बेंचमार्क डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ ₹27 एंड ₹33 इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब सब उससे पहले कहाँ हुआ था, यहाँ पे हुआ था कि 20 एंड 25 पर कैपिटा पर ईयर था प्लानिंग कमीशन 1962 में। फिर तेंदुलकर कमेटी का क्या हो गया 27 एंड 33 इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, इन रूरल एंड अर्बन एरियाज 27 फॉर रूरल एंड 33 क्या है कि रूरल एरियाज के लिए ₹27 और अर्बन के लिए ₹33 पर कैपिटा पर ईयर नहीं, डेली पर डे के लिए 27 फॉर रूरल एंड 33 फॉर अर्बन। इतना इनकम उन्होंने स्पेसिफाई किया पर डे। ओके, उसके बाद सी रंगराजन कमेटी 2012 to 14। The committee raised the cost of living per day to 32 and ₹47। तो रूरल के लिए अब हो गया ₹32 सी रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग और अर्बन के लिए हो गया ₹47। ठीक है, irrespectively, and hence poverty percentage of India worked closely to 30% in the absolute terms closer to 40 crore poor। तो इससे क्या पता, जब ये वाला अपडेट आया तो उसके बाद 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज BPL बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी रिडन थी। 30% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विच वाज 40 crore people in 2012 to 14। ओके, नेक्स्ट देखते हैं
Arvind Pangaria Task Force 2015. The task force suggested setting up committee to identify people below poverty line. It also suggested participation of states. The paper talks of considering 4 options for tracking the poor. First, continue with Tendulkar poverty line. Second, switch to Rangarajan or other higher rural and urban poverty lines. Third, bottom 30% of population tracking over time. Fourth, tracking the bottom 30% on specific components such as housing, sanitation, electricity, nutrition intake, etc. तो जो अरविंद पंगारिया टास्क फोर्स 2015 में आई, उसने सजेस्ट किया कि तेंदुलकर कमेटी की पॉवर्टी लाइन के साथ कंटिन्यू करें। तो तेंदुलकर कमेटी की पॉवर्टी लाइन क्या थी? तेंदुलकर कमेटी ने सजेस्ट किया था कि जो पॉवर्टी लाइन है वो सिर्फ क्या है कि रिकमेंडेड टू शिफ्ट फ्रॉम कैलोरी बेस्ड मॉडल टू और भी चीज़ों को उन्होंने करा था कंसिडर, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट। तो ज़्यादा इंक्लूसिव थी, ज़्यादा चीज़ें इसमें डायमेंशंस जो थी, जो फैसिलिटीज़ डे टू डे हमें यूज़ करनी होती है, उनकी डायमेंशंस को उन्होंने ऐड किया, जस्ट कैलोरी पे स्टिक नहीं करते हुए। तो ये तेंदुलकर कमेटी के सजेशंस थे। एक बार फिर से रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अगली वाली कमेटी ने बोला है कि इनके साथ कंटिन्यू करें। तो इस बेसिस और जो इनकम वाला था वो उन्होंने कहा था कि रंगराजन कमेटी के साथ जाए। जो इनकम वाला है वो रंगराजन कमेटी के साथ जाने के लिए बोला, जैसे 32 फॉर रूरल, ₹32 फॉर रूरल पर डे और 47 फॉर अर्बन ऑन पर डे बेसिस पर कैपिटा। ऑलराइट, 30% जो बॉटम 30% पीपल हैं उनको किस बेसिस पे, किन कंपोनेंट के बेसिस पे ट्रैक करो कि उनकी हाउसिंग में इम्प्रूवमेंट हो, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूट्रिशनल इंटेक में इम्प्रूवमेंट हो। फिर आई नीति आयोग टास्क फोर्स। नीति आयोग फेवर्ड तेंदुलकर लाइन, ओके, टू रिमूव एनी क्रिटिसिज्म दैट मेनी पुअर वुड बी लेफ्ट बिहाइंड इफ पॉवर्टी लाइन। तो उन्होंने ये वाली लाइन को छोड़कर तेंदुलकर लाइन के साथ जाने को प्रेफर किया नीति आयोग ने, क्योंकि अगर ये वाली लाइन के साथ जाते हैं तो एज पर तेंदुलकर कमेटी नीति आयोग हैज underlined that it will only be used to track progress in combating poverty rather than identifying the poor for entitlements. SECC data suggests, as suggested by Saxena Hasim committee, will be used for entitlements. तो नीति आयोग ने क्या कहा कि entitlements के लिए यूज होगा SECC डाटा, जो कि सक्सेना एंड हासिम कमेटी के ने प्रोवाइड करवाया था, और डॉक्टर एनसी सक्सेना कमेटी सेटअप की गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू एडवाइज इट on suitable methodology for below poverty line census and not for estimation of poverty. तो डॉक्टर एनसी सक्सेना की कमेटी बीपीएल सेंसस के लिए एस्टेब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, एंड ना कि पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन के लिए या एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए। ठीक है, नॉट दिस बट दिस, ओके। The Planning Commission constituted an expert group under the chairmanship of Professor S.R. Hasim to recommend the detailed methodology for identification of families below poverty line in urban areas. और क्या हुआ कि प्लानिंग कमीशन में भी कॉन्स्टिट्यूट की गई एस.आर. हाशिम, प्रोफेसर एस.आर. हाशिम के अंडर, जो किसके लिए थी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉवर्टीज बिलो पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एरियाज। ये कुछ एक्सेप्शनल जो इंफॉर्मेशन होती है वो याद रखनी चाहिए क्योंकि उन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, दिस वाज फॉर अर्बन एरियाज। अब देख लेते हैं पॉवर्टी लाइन क्या होती है। द कन्वेंशनल अप्रोच टू मेजरिंग पॉवर्टी इज टू स्पेसिफाई अ मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू satisfy basic human needs. This minimum expenditure is called poverty line. कन्वेंशनल अप्रोच क्या होती है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट
स्पेसिफाई कर दो कि ये मिनिमम एक्सपेंडिचर की अमाउंट है जिसकी रिक्वायरमेंट है एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, और जो मिनिमम एक्सपेंडिचर की अमाउंट स्पेसिफाई की जाती है उसी को क्या कहते हैं, पॉवर्टी लाइन. The basket of goods and services necessary to satisfy basic human needs in the poverty line basket PLB. The proportion of the population below poverty line is called poverty ratio or head count ratio. तो जो proportion of population BPL में आती है उसको कहते हैं poverty ratio या फिर head count ratio. Most countries and international institutions, World Bank, United Nations etc. follow similar approach of counting poor. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक और यूएन भी यही सिमिलर अप्रोच एक अमाउंट स्पेसिफाई करो पर कैपिटा एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के साथ, जैसे कि पर डे हो गया, फॉर एग्जांपल पर डे. ठीक है, ये और अमाउंट किस क्या सिग्निफाई करते हैं कि इतना रिक्वायर्ड है, एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड है एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए G&S. ठीक है, तो उसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन हम एस्टेब्लिश करते हैं. ऑफ पॉवर्टी, ओल्ड पर्सपेक्टिव क्या कहता है? वन व्यू ऑफ पॉवर्टी इज दैट providential and that it is providential and is result of an individual. तो एक पर्सपेक्टिव, पहले कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हम देख रहे हैं और उसके अंदर दो पर्सपेक्टिव है, ओल्ड पर्सपेक्टिव है और मॉडर्न पर्सपेक्टिव है. ओल्ड पर्सपेक्टिव कहता है कि ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए. ठीक है, वो इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करता है. मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, poverty is beyond individual control and it is social system functioning which is the major cause of poverty. तो यहाँ पे ओल्ड पर्सपेक्टिव में इंडिविजुअल को खुद की पॉवर्टी के लिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, ये कहता है ओल्ड पर्सपेक्टिव. मॉडर्न पर्सपेक्टिव कहता है कि जो सोशल सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है, ना कि इंडिविजुअल अपनी पॉवर्टी या अपनी गरीबी के लिए. पे चलते हैं वापस से और देखते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे कॉज करते हैं पॉवर्टी. द हॉट क्लाइमेट ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ पीपल, स्पेशली द रूरलिटीज, टू वर्क फॉर विच प्रोडक्शन सीवियरली सफर्स. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पाता है इंसान, स्पेशली रूरल एरियाज में. अर्बन एरियाज में जो वर्क स्पेसेस होते हैं वहाँ पे तो एयर कंडीशनिंग वगैरह का प्रोविजन होता है. रूरल एरियाज में क्या है कि मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है या एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब चीज़ें रूरल एरियाज में मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट रहती हैं, जिसमें कि जो क्लाइमेट है उसके इफेक्ट से वो escape नहीं कर पाते हैं. Frequent flood, famine, earthquake and cyclone cause heavy damage to agriculture. As a result, the price of food increases and access becomes more and more limited, putting many at higher risk of hunger. तो क्या रहता है, अगर फ्लड आ जाए, फेमाइन हो जाए मतलब सूखा पड़ जाए, अर्थक्वेक आ जाए या फिर साइक्लोन आ जाए तो उससे डैमेज होता है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को, और इससे होता है कि लिमिटेड आइटम्स रह जाती हैं. जब सप्लाई रिड्यूस हो जाती है तो अगर डिमांड तो उतनी रहेगी, अगर डिमांड हाई है या फिर डिमांड कांस्टेंट भी है तो सप्लाई रिड्यूस हो जाए तो प्राइस बढ़ जाता है. ठीक है, मार्केट फोर्सेस के बारे में अगर आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं तो इवेंचुअली इस चैनल पर इकोनॉमी के भी लेक्चर्स आएंगे. अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर सप्लाई कम है और डिमांड कांस्टेंट है तो प्राइस इंक्रीज होना है. तो उससे क्या होता है कि अफोर्डेबिलिटी, एक तो जो अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाता है एंड देन लिमिटेड सप्लाई हो जाती है. अगर कोई अफोर्ड कर भी ले तो भी रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है, जो इससे क्या होता है कि डिमांड बढ़ने से और ज़्यादा लोग हंगर के रिस्क को सफ़र करते हैं. फ्लडिंग can also contaminate water sources, increasing the transmission of waterborne diseases such as typhoid and cholera. तो फ्लड से क्या होता है कि गंदगी भी साथ में ले आता है, फिर वाटर रिसोर्सेज को कंटेमिनेट कर देते हैं और वहाँ से बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, क्योंकि वाटर तो इंसान कंज्यूम करेगा ही ना. टाइम पे साफ पानी का एक्सेस बहुत ही मुश्किल हो जाता है. मोरोवर, एब्सेंस ऑफ टाइमली रेन, excessive or deficient rain affect severely countries agricultural production. तो
टाइमली रेन का ना होना, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना या बहुत कम बारिश होना, इन सब से भी कंट्री का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। बात करें डेमोग्राफिक फैक्टर्स की, तो ये फॉलोइंग डेमोग्राफिक फैक्टर्स है जो कि अकाउंटेबल हैं इंडिया के पॉवर्टी के लिए। First one is rapid growth of population. The growth of population exceeds the rate of growth in national income. The burden of this reduction in per capita income is borne heavily by the poor people. तो क्या कहते हैं कि क्योंकि जो ग्रोथ रेट है कंट्री का, उसके कंपैरिजन में जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का रेट है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा लोगों में एक जब कंट्री की टोटल इनकम को अगर नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड किया जाए तो वो मतलब टाइम टू टाइम वो रिड्यूस होती रहती है जो एक्चुअल नेशनल इनकम है कंट्री की। तो उसका जो सारा बर्डन है वो तो एक्चुअल में पुअर पीपल पे आता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि चाहे हम डिवाइड करके निकाल ले कि इतना हमारा पर कैपिटा नेशनल इनकम आ रहा है, बट क्या डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही रहता है क्या, कि सेम ही रहता है क्या पर हेड? तो नहीं ना, क्योंकि वो पुअर जो पीपल है उनको तो कम ही उनको कम होता है और बाकियों को ज़्यादा होता है। तो एक तरीके से जिनके पास ज़्यादा है उनके कंपैरिजन में उन पे इतना बर्डन नहीं है, बट जो पुअर पीपल जिनके पास जो ऑलरेडी पुअर है वो उनको ये जो बर्डन है वो ज़्यादा बियर करना पड़ता है। पॉपुलेशन ग्रोथ नॉट ओनली क्रिएट्स डिफिकल्टीज इन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी बट ऑल्सो लोअर्स द पर कैपिटा इनकम विच टेंड्स टू इंक्रीज पॉवर्टी। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना सिर्फ डिफिकल्टीज बढ़ा देती है पॉवर्टी रिमूवल के लिए, पर और क्या करती है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो पॉवर्टी के द पर कैपिटा इनकम विच टेंड्स टू इंक्रीज पॉवर्टी जो है, जो पर कैपिटा इनकम है वो और ज़्यादा कम होता जाता है, जिससे कि और ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के अंडर आते रहते हैं। यही ऊपर वाली लाइन से लिंक्ड ये वाला भी पॉइंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ एट फास्टर रेट इंक्रीज लेबर सप्लाई विच टेंड्स टू लोअर वेज रेट। एक तो देखो, अगर सब किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस तो कम ही होगा ना, क्योंकि डिमांड जो है वो एडिकेट नहीं है कि इस पूरी सप्लाई को कंज्यूम कर सके। तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, दूसरा कि वेज रेट कम होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करेंगे कि हमें काम मिले, और इस चक्कर में वो लोग क्या है कि कम से कम वेज रेट पे भी काम करने के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीजेज लैंडलेस एंड हेंस इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। तो देखो, लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा लैंडलेस पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा, क्योंकि लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है तो लैंड का भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड के साथ, तो कम से कम लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे। और फिर इसी तरीके से एक और फैक्टर जुड़ जाएगा कि कोई लैंडलेस है तो वो फिर पॉवर्टी में कंट्रीब्यूट करता है। फैमिली, द साइज ऑफ फैमिली हैज सिग्निफिकेंट बियरिंग ऑन रूरल पॉवर्टी। द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड इट इज दैट पुअर पीपल टेंड टू बिलीव टू हैंड्स आर बेटर देन वन। तो क्या होता है कि जो साइज ऑफ फैमिली है वो एक बड़ा विशेष साइकिल क्रिएट करता है। लोग सोचते हैं कि जितने ज़्यादा लोग होंगे काम करने के लिए उतनी जल्दी हम पॉवर्टी से बाहर आएंगे। ऐसा लोग अपनी गरीबी को फाइट करने के लिए सोचते हैं, लेकिन होता क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ है उतनी ज़्यादा, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऊपर से स्किल डेवलपमेंट का उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पुअर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेम ही यू नो अनस्किल्ड एम्प्लॉयर्स की फॉर्म में एंटर होते हैं मार्केट में। तो एक तो उनको काम मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं, बिकॉज वो भी डिमांड कम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं तो, और उनको फीड भी करना पड़ता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सस्टेन भी करना पड़ता है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो बढ़ना चाहिए, मतलब कंजम्पशन तो के लिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ता है, जबकि इनकम ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही उस रैपिड फॉर्म में बढ़े या बढ़े बिल्कुल भी। ठीक है, they see benefits in having more hands for subsistence agribusiness well as to ensure that they will have stable support in their old age.
तो उनको लगता है कि हमारे पास ज़्यादा बच्चे होंगे तो कम से कम सब लोग थोड़ा थोड़ा मिलके हमारी ओल्ड एज में हमारी हेल्प करेंगे, बट इनिशियली तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है उन बच्चों को adequate facilities provide करने के लिए. Other reasons of poor family being large family is the birth control is not free of automatic. Uh, Moreover, they do not even mm, they are not even aware about the contraception, fertility, sterilization and other family planning approaches. उनके पास family planning approaches की कोई knowledge नहीं होती, इस वजह से भी वो लोग ज़्यादा reproduce कर लेते हैं. And the large size of family is the lower the per capita income है ना, the lower standards of living. तो क्या होता है कि जब फैमिली बड़ी है, अगर हम एक फैमिली को एक यूनिट मान के चले, तो अगर उसमें लोग ज़्यादा हैं तो एक फैमिली की जो टोटल इनकम है वो ज़्यादा लोगों में डिवाइड होगी, मतलब पर कैपिटा इनकम उतनी कम रहेगी, ठीक है. और उससे क्या होगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी और कम होगा. जहाँ पे एक अगर कोई ए 1 RK 1 रूम किचन ओन करता है या 1 रूम किचन में रह रहा है, तो अगर वो 2 लोग हैं, ठीक है, तो शायद उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी बुरी ना हो, ठीक है. हाइजीन वगैरह सब चीज़ें जो भी हो सकती हैं वो फिर भी एडिकेट रहेंगी फॉर 2 पीपल 1 रूम एंड किचन के सेटअप में. बट अगर वही 5 लोग हैं या वही 6 लोग हैं तो उनकी कंडीशन क्या होगी, या पॉलिटिकल फैक्टर्स. कुछ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी remains ubiquitous when even after more than 7 decades of gaining independence from foreign rule. The reason in this regard can be as follows. Communal tension and strife between two regional parties disrupt process of allowing concessions and solving poverty. तो कम्युनल टेंशन्स जो क्रिएट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए, जो स्ट्राइफ्स क्रिएट होते हैं उनके बीच में, उससे क्या होता है कि वो पीपल प्लीजिंग पॉलिसीज को अपनाते हैं, फिर काउंटर करते हैं. एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को फेवर नहीं करना चाहती है, इसके चलते पॉवर्टी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं society. In most cases, rural reforms are either stalled or for indefinite period of time. Even if measures are implemented, they are mostly half measures and confined to short-term solutions that don't do much good to India's poverty reduction goals. तो क्या होता है कि जो लोग सॉल्यूशंस अप्लाई करते हैं ना, तो सॉल्यूशंस का हमेशा जो रिजल्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा देर में आता है. तो क्या है कि शॉर्ट टर्म गोल्स ओरिएंटेड पॉलिसीज पॉलिटिकल पार्टीज फेवर करती हैं, ताकि जो उनका रिजल्ट है वो भी उसी टाइम इमीडिएटली देखने को मिले, ताकि उनका जो वोट बैंक है उस पर वो क्लेम कर सके कि हमने ये किया तो इसका ये रिजल्ट आया, इतना 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 इम्प्रूवमेंट हुआ. तो इसीलिए लॉन्ग टर्म पॉवर्टी रिडक्शन सॉल्यूशंस जो एक्चुअली इफेक्टिव होते हैं वो तो लोग अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं. बट ये जो पॉपुलस एजेंडाज होते हैं कि एक साइकिल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्लेम कर रहा है, कोई स्मार्टफोन्स दे रहा है, ये सब फ्रीबीज और ये जो शॉर्ट टर्म में फॉर एग्जांपल किसी को अनाज मुफ्त मिल रहा है, किसी के लोन्स वेव हो रहे हैं, ये सब टैक्टिक्स ज़्यादा फेवर किए जाते हैं. वोट बैंक पॉलिटिक्स जिसको कह सकते हैं कि vote bank politics is also held accountable for poverty in India, where various political leaders find it convenient to exclude huge chunk of population from the poverty census after getting elected. Minority ethnic communities, tribal groups and Dalits are often not included in the list of beneficiaries. तो जो उनका वोट बैंक होगा उसी को वो बेनिफिट करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है ऐसी जिसको इतना सिग्निफिकेंट वोट बैंक नहीं मानते अपना, उसको वो इजीली स्किप करते जाते हैं, चाहे वो ऑन पेपर्स ना हो ऐसा, बट इन प्रैक्टिस ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे वो एरिया में जहाँ पे वो रिजाइड कर रही है कम्युनिटी जिसको इतना ज़्यादा वोट बैंक के लिए वो प्रेफर नहीं करते हैं, वहाँ पे कम डेवलपमेंटल वर्क होंगे एज कम्पेयर टू जहाँ पे उनका वोट बैंक है, वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया रोड्स और फिर ये सब development works चलते रहते हैं. Various development plans are being guided by political interest, which is major cause of concern for poverty in India. Hence, planning has not been successful to tackle the problem of poverty
एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्हीं सब के चलते जो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, इन सब के चलते जो डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। ओके, नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हम देख चुके हैं, पर एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑन एवरेज 17 मिलियन पीपल आर एडेड एवरी ईयर। 17 मिलियन पीपल, 70 लाख लोग, 70 लाख लोग नहीं, सॉरी, 17 मिलियन इज 1.7 करोड़। 1.7 करोड़ पीपल हर साल ऐड हो जाते हैं इंडिया की पॉपुलेशन में। ठीक है, उससे क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाती है और गुड्स की कंजम्पशन के लिए। when the population increases, the scarce resources sharing in and is at stake, which will create huge poverty gap. तो होता वही है कि रिसोर्स लिमिटेड है, डिमांड बढ़ रही है, कोई ना कोई तो जो है वो उससे वंचित रह ही जाएगा। उससे क्या होगा कि गैप इंक्रीज होगा, हैव एंड हैव नॉट्स का गैप। ठीक है, कैपिटल एंड एबल एंटरप्रेन्योरशिप डेफिसिट। तो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी बहुत आई थिंक एक डेकेड से ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। उससे पहले काफ़ी कम था, अभी बहुत ज़्यादा हाइप है। पर जो बाकी कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ जैसे कि, उनके लिए पहले से ही काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम रहा है। तो क्योंकि ये हम इस कैपिटल और एबल एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे पास डेफिसिट है, तो होता क्या है कि इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है उनका प्ले करने के लिए ग्रोथ में, वो नहीं ब्रेक हो पाता है। और शॉर्ट सप्लाई जो होती है सर्विसेज की और गुड्स की, वो अ, और जो रिसोर्सेज की, अदर रिसोर्सेज की, जैसे कि कैपिटल एक रिसोर्स है, मनी है ना, तो या फिर टैलेंट, जिस तरीके का भी कैपिटल आप कंसिडर कर लें, उसके रिडक्शन की वजह से या उसकी लैक की वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जिससे कि डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती है जिस स्केल पे होनी चाहिए। हाउसिंग एंड होमलेसनेस, द पुअर आर नॉट सरप्राइजिंगली मोर लाइकली टू बी होमलेस देन not so poor but also likely to live in dilapidated housing and unable to buy their own homes। है ये कि नॉट टू कॉज एनी सरप्राइज, जो पुअर हैं वो होमलेस तो होंगे, अगर कहीं उनके पास कोई घर होगा भी तो आप देखते हैं कि स्लम एरियाज होते हैं, क्या ही फैसिलिटीज उनके पास होती हैं। स्लम एरियाज में सैनिटेशन नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती प्रॉपर, ठीक है, वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और वो अपने खुद के घर खरीदने के लिए तो बिल्कुल ही अनेबल होते हैं लोग। ठीक है, मैनी पुअर फैमिली स्पेंड मोर देन हाफ देयर इनकम ऑन रेंट। तो मोर देन हाफ ऑफ देयर इनकम, मोर देन 50% ऑफ देयर इनकम जो पुअर फैमिलीज हैं वो रेंट पे स्पेंड करती हैं, हाउसिंग रेंट पे। एंड दे टेंड टू लिव इन पुअर नेबरहुड्स दैट लैक जॉब अपॉर्चुनिटीज, गुड schools and other features of modern life that wealthier people take for granted। ऑलमोस्ट हर सिटी का, नॉट जस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी, ऑलमोस्ट हर सिटी का एक होता है, एक अच्छा वाला एरिया होता है और फिर एक स्लम एरिया होता है। तो उनमें डिफरेंसेस आप नोट करेंगे तो अच्छे वाले एरिया में बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे जिन जिन जहाँ पे लोगों को अपना मार्केट बेस दिखाई देता है, कंज्यूमर बेस दिखाई देता है, वो वहीं पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। और ये वाला जो स्लम एरिया है वो ऑन द अदर एंड बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड रहता है हर तरीके की फैसिलिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज से। Lack of adequate housing for poor remains a major national problem, even worse in case for complete homeless people। तो लैक ऑफ प्रॉपर हाउसिंग जो है वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ही, क्योंकि लिविंग कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही डिटीरियोरेट होता रहता है जब जैसे जैसे गैप इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी डिप्राइव्ड है, ऊपर से उनको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड हो रही हैं, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में देखा है ना। तो उससे भी ज़्यादा वर्स चीज़ क्या है, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या है बियॉन्ड दैट, इज दोज जिनके पास किसी भी तरीके की फैसिलिटी है ही नहीं शेल्टर की, जो स्ट्रीट ड्वेलर्स हैं, जो पेवमेंट्स पे रहते हैं, जो रोड साइड्स पे रहते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं बैगिंग में एंड ऑल दैट स्टफ। तो उनकी और भी ज़्यादा कंडीशन बहुत ही ख़राब है।
एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बिल्कुल भी डर्थ नहीं है दिस सेक्शन ऑफ पीपल। मतलब कि आप डेफिनेटली किसी भी अच्छे एरिया में चले जाइए या बुरे से बुरे एरिया में चले जाइए, नंबर ऑफ होमलेस पीपल आर प्रेजेंट। चलो अब सोशल फैक्टर्स हम देखते हैं। अनटचेबिलिटी फर्स्ट, हमारा सोशल ईविल जो अभी भी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट करता आ रहा है, चाहे किसी भी स्केल पे हो। वेरियस सोशल इश्यूज लाइक अनटचेबिलिटी दैट आर स्टिल प्रेवलेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया आर मेजर कॉज ऑफ हिंड्रेंस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज का डेप्रिवेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। दे आर नॉट अलाउड टू वेंचर इनटू जनरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज and are forced to do inhuman jobs like manual scavenging. फॉर्चुनेटली अभी मैनुअल स्कैवेंजिंग के अगेंस्ट इंडिया में बहुत अच्छा मूवमेंट है एंड गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली इनिशिएट कर रही है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग एलिमिनेट हो जाए, एब्सोल्युटली एलिमिनेट हो जाए। कास्ट सिस्टम, the subordination of low caste people by high caste people caused the poverty of the former. जी, तो ये होता है कि लोअर कास्ट पीपल हैं जो, उनको दबाया जाता है बाय अपर कास्ट पीपल। तो इस वजह से कि जो कास्ट एंड ड्यू टू रिजिड कास्ट सिस्टम द लो कास्ट पीपल कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द गेम ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो क्योंकि उन लोगों को सप्रेस किया जाता है तो इकोनॉमी का जो गेम होता है जैसे बिजनेसेस में और इन सब में लोअर कास्ट के पीपल जो है वो आपको उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम देगा। तभी अभी SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएंगे कि कौन सी स्कीम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ लोअर कास्ट पर्सन विल नॉट बी अलाउड टू बिकम अ बिजनेसमैन और ट्रेडर। उनके साथ उनसे लोग प्रेफर ही नहीं करते हैं डील करना, तो फिर वो बन भी जाते हैं तो कोई उनको एज सच प्रॉफिट नहीं हो पाता है, इनफैक्ट वो सफर ही करते हैं उसमें। दिस सिस्टम मेक्स द पुअर गेट पुअरर एंड रिच गेट रिचर। दिस अनबैलेंस्ड एंड अनफेयर सिस्टम इज अनदर लीडिंग कॉज ऑफ पॉवर्टी। ऑफ कोर्स अनफेयर तो है ही, है ना। क्या कास्ट क्या बेसिस है, क्या मतलब इट्स इलॉजिकल टू फॉलो सच थिंग्स कि आज के टाइम पे भी हम 21st सेंचुरी में वो चीजें फॉलो करें, वो भी उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो कभी क्रिएट हुई भी नहीं थी। सिंपल प्योर डिस्क्रिमिनेशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, कास्ट सिस्टम, traditions and customs are putting hindrances in the way of faster development and have aggravated the problem of poverty. Lack of education देख लेते हैं। Education is an agent of social change and egalitarianism. जो education है क्योंकि वो सबको हमारी कंट्री में मिलती है, तो वो एक तो सोशल चेंज लेके आते हैं और फिर सबको एक जैसा पढ़ाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लासरूम में चाहे कोई हायर कास्ट का पर्सन बैठा हो चाहे लोअर कास्ट का, जो टीचर एक पढ़ाएगा तो सबको एक जैसा पढ़ाने वाला है। वो ऐसे उसके कान में कुछ और नहीं पड़ेगा और उसके कान में कुछ और नहीं पड़ेगा, सबको सेम ही चीजें इंस्ट्रक्ट की जाएंगी, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक सोशल चेंज क्रिएट होता है। एजुकेशन के थ्रू आप किसी की भी जो मेंटेलिटी है उस पर टारगेट करके सोशल चेंज क्रिएट कर सकते हैं। और इगैलिटेरियनिज्म आता है सोसाइटी में, हर वर्ग के हर क्या कहते हैं जेंडर के लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं इकोनॉमी में। Poverty is also said to be closely related to levels of schooling, technical and vocational skills. तो poverty किस चीज से भी related है कि कितना schooling हुआ है पर्सन का और कितना उसको technical और vocational नॉलेज है। अगर ये ज्यादा होगी तो वो पॉवर्टी से बाहर आने के बहुत अच्छे चांसेस रखेगा, और अगर यही चीजें उसके पास नहीं होंगी तो फिर उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने में प्रॉब्लम होगी। जो मिलेंगी उनके वेजेस बहुत लो रहेंगे, अनस्किल्ड लेबर के, जैसे आके आपको पता है कि वेजेस लो होते हैं एज कम्पेयर टू स्किल्ड लेबर। लैक ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस for prevalence of widespread poverty in India. तो lack of education और illiteracy है जो वो most important reason है जिससे कि poverty increase। क्योंकि क्या है कि education जब आपको मिलती है, जब आपको knowledge मिलती है ना, तो आपको आपके अंदर hope भी
किंडल होती है। बट अगर आपके पास ये सब नॉलेज ही नहीं है कि वर्ल्ड कैसे वर्क कर रहा है आपके अराउंड, है ना, तो आपके पास वो होप भी नहीं रहती और आप अपनी गरीबी को जो है वो एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। आप करके इसलिए समझा रही हूँ कि अगर वो करके समझाऊंगी तो एम्पैथी का क्रिएट नहीं हो पाएगा शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे मतलब आप प्रोनाउन में नहीं यूज कर लिया। द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल दलित्स इन बिहार इज अराउंड 38.5%। तो लिटरेसी रेट क्या है फीमेल दलित्स का बिहार में? 38.5% के अराउंड। इट इज फार बिहाइंड इंडियाज प्रोग्रेस ट्रेंड। इट इज स्टिल 30 years बिहाइंड इंडियाज नेशनल लिटरेसी रेट। तो इंडिया का लिटरेसी रेट है जो 30% नहीं, इंडिया के एक्चुअल लिटरेसी रेट से बिहार की दलित वुमेन का लिटरेसी रेट 30 years पीछे है। मतलब 30 साल का की प्रोग्रेस जो है उसका गैप है दलित वुमेन की लिटरेसी रेट में बिहार की और एक्चुअल नेशनल लिटरेसी रेट में। ठीक है, तो ये हम क्योंकि हम सोशल फैक्टर्स की बात करें तो एक तो वो दलित हैं, ऊपर से इलिटरेट हैं, तो आपको पता ही है कि उनका क्या कंडीशन में वो सरवाइव करते होंगे। और इसके अलावा बताना चाहूंगी कि लिटरेसी रेट इंडिया का भी कोई बहुत अच्छा नहीं है अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें, बट ये तो और भी बुरी बात है ना। सोशल एक्सक्लूजन इज बीइंग अनेबल to participate in society because of lack of resources that are normally available to the general population. It can refer to both individuals and communities in a broader framework with linked problems such as low incomes, poor housing, high crime, environments, family problems. तो सोशल एक्सक्लूजन वो उस चीज को कहेंगे कि जहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पीपल को चीज मिल रही है, अगर उससे आपको वंचित रखा जाए, आपको उससे बाहर कर दिया जाए, तो उस चीज को हम सोशल एक्सक्लूजन कहेंगे। और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, कम्युनिटी लेवल पे भी हो सकता है। और क्या क्या बेसिस होते हैं इनके कि इस तरीके के प्रॉब्लम लो इनकम, पुअर हाउसिंग और हाई क्राइम को जन्म देती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, क्योंकि क्राइम तो लोग करेंगे ही ना, स्पेशली उनके अगेंस्ट उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी में एक सेल्फ रिस्पेक्ट को रीगेन करने की टेंडेंसी रहती है। इट्स ह्यूमन नेचर। सोशल एक्सक्लूजन लीड्स टू पॉवर्टी इन द फॉलोइंग वेज। इट लीड्स टू द लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी in government offices, and this leads to fewer policies in favor of that particular section which can benefit them in a better standard of living. तो क्या है कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम रहता है। जब आप उनको एक्सक्लूड कर दोगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आएगा, और अगर उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा तो उनके फेवर में पॉलिसीज कैसे बनेंगी, है ना। Exclusion imposes constraints under which human rights cannot be enjoyed in the same manner as by others in society. For example, basic rights like education and justice are denied, which further leads to poverty. तो ऐसा जो exclusion है वो क्या impose करता है? Constraints. मतलब लोगों पे रोक लगाता है ना किसी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, वही तो इसको एक्सक्लूड करना हुआ। तो इससे क्या होता है कि इवन ह्यूमन राइट्स जो है वो भी वायलेट होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बेसिक राइट टू एजुकेशन और जस्टिस है जो वो भी डिनाई हो जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि चलो एक बहुत पुराना एग्जांपल है बट ले लेते हैं कि B.R. अम्बेडकर को क्लास रूम से एक्सक्लूड कर दिया जाता था, उन्हें क्लास के बाहर खड़े रह के मतलब सुनना पड़ता था, जो भी है उनको बैठने नहीं दिया जाता था हायर कास्ट के लोगों के साथ क्लास में। तो खैर वो तो एक एक्सेप्शनल केस थे कि व्हाट अ जीनियस ही वाज, कि उन्होंने इतना सफर भी किया और उन्होंने स्टिल रोज अपने स्कूल में जाकर अपनी नॉलेज को इनहेंस किया। एंड देन हमें पता है कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी को और इंडिया को। The low participation of tribals in decision making and their alienation from land and forests were central to continued exclusion of आदिवासीज from progress and development. तो क्या होता है कि आदिवासीज जो होते हैं, ट्राइबल पीपल जो होते हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है फॉरेस्ट से, उनको एलिनेट कर दिया जाता है, लैंड उनके एक्वायर कर ली जाती है। ऐसे में उनको डेवलपमेंट का पार्ट नहीं बनाया जाता, उनको नजर में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज का फ्रेमवर्क डिसाइड नहीं किया जाता।
ठीक है। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सब डिवाइडेड एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इंडिया में यही है कि जो लैंड है वो बहुत फ्रेगमेंटेड है, छोटी छोटी लैंड है, इसलिए प्रोडक्टिविटी प्रॉपर नहीं आ पाती, क्योंकि कोई भी मतलब टेक्नोलॉजी फिर बहुत लिमिटेड रह जाती है ना। आप छोटे सी लैंड होल्डिंग पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह भी नहीं चला सकते हैं अगर कोई छोटा सा एरिया है जहाँ पे आप कल्टीवेशन कर रहे हैं। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। वही कि लैंड तो है बट उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है क्योंकि वो फ्रेगमेंटेड है ना, वरना अगर वो थोड़ी अच्छे मतलब अच्छा खासा एरिया होता तो बहुत ज़्यादा अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन हो सकता था। देखिए, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एक फील्ड में जहाँ पे 3 जने काम करेंगे तो भी वो उतनी ही प्रोडक्टिविटी लेके आएंगे। प्रोडक्टिविटी एक लैंड के से एक पॉइंट के बाद इंक्रीज नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही लैंड पे आप जहाँ पे 50 kg सामान उगता है वहां पे आप 100 kg नहीं उगा सकते। अगर 3 लोगों के काम करने के बाद वहां पे 50 किलो सामान उग रहा है तो एक पॉइंट के बाद चाहे आप 6 लोग एम्प्लॉय कर ले, मतलब नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दे, तो भी वो 100 kg प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। वही 50 kg का जो काम है उसी को 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो कि 3 लोग भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आराम से कर रहे थे, जिसमें कि कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ा था। वही 6 लोग करेंगे, शायद काम थोड़ा जल्दी हो जाए बट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होने वाली है। लैक ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल एंड लैक ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी। अब देखो, जब छोटा लैंड होल्डिंग होगा, जितना छोटा लैंड होल्डिंग होगा उनके पास कोलेटरल भी उतना छोटा होगा, तो एक तो लोन फैसिलिटीज उनको प्रॉपर नहीं मिल पाएंगी, है ना। और अदरवाइज भी अभी इंडिया में थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो है, वी कैन नॉट डिनाई, बट ये प्रॉब्लम तो रही है कि जो किसान है उसको इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है, ठीक है ना। उसके पास फॉर्मल सेक्टर में जाने के लिए अभी तक प्रोविजंस नहीं थे। काफी इम्प्रूवमेंट ऑल्दो हुआ है बट प्रॉपरली ये चीज सॉर्ट आउट सॉल्व हुई है, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि मतलब नहीं हुई है एक्चुअली। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको इन्वेस्टेबल कैपिटल नहीं मिलता और उसके लिए उनको इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है, जो कि चुकाते बस उनकी वही कंडीशन हो जाती है कि वो इवेंचुअली सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन, तो ट्रेडिशनल मेथड्स अभी भी यूज होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स बुरे नहीं है, let me tell you very clearly, बट उससे क्या होता है, अगर आप थोड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं तो वहां पे प्रोडक्टिविटी लैंड की बढ़ के आती है और आपको ज्यादा फायदा होता है। इलिटरेसी एटसेट्रा विच आर वेरी रीजन ऑफ पॉवर्टी इन दिस कंट्री। तो हम फिर एम्फसाइज कर रहे हैं यहाँ पे भी कि इलिटरेसी तो बिल्कुल ही एक रीजन है पॉवर्टी का इस कंट्री में। ठीक है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉवर्टी। तो जो बेरोजगारी है वो रिफ्लेक्शन है इसका गरीबी का। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पीपल रिमेन आइदर अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड। अपॉर्चुनिटी नहीं है तो या तो लोग बेरोजगार रहेंगे या तो अंडर एम्प्लॉयमेंट रहेंगे, जैसे कि जिसका कि मतलब वो अपनी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ दीज unemployed and underemployed workers are the small and marginal farmers and landless agricultural laborers। तो इस तरीके के अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं? मोस्टली ये होते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिनके जो खेती में पार्टिसिपेट करते हैं दूसरों के लैंड पे, उनके पास खुद की लैंड ओनिंग नहीं होती है। इन्फ्लेशन, the persistent steep increase in price of goods and services drastically affects the poor। अगर दिन पर प्रतिदिन चीजें महंगी होती जाएंगी तो उसका गरीब इंसान को बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि वो उसकी अफोर्डेबिलिटी उतनी ही घटती जाएगी और उसको जो है फैसिलिटीज से डिप्राइव्ड रहना पड़ेगा और इनफैक्ट स्टार्वेशन भी उसको फेस करनी पड़ सकती है। बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद दिस सिचुएशन एंड देयर स्पेंडिंग पैटर्न गेट्स अफेक्टेड। उनके जो खर्च करने के तरीके होते हैं उन पे इफेक्ट
होता है, क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है। उनको बहुत ही ज़रूरत है कि वो अपने जुडिशियसली, इनफेक्ट वो तो अपनी बेसिक नीड्स ही पूरा कर पाते हैं बस। ठीक है, inflation process forces them to spend almost their entire income for every basic necessity of survival, like food, clothing, shelter, in that order. तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि वो तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज ही पूरी करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, है ना। समटाइम्स पुअर कैन नॉट हैव द बेसिक रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, हाइजीनिक लिविंग environment and cannot have basic minimum health care, and so become easy victims to malnutrition and disease. Thus, the inflation condemns the poor to a lifetime for bad health and worse living condition. तो महंगाई बढ़ने से जो गरीब है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, और एक तरीके से उसकी पूरी लाइफ ही क्योंकि इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ता ही जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है, तो उनकी जो लाइफ है वो इफेक्ट होती रहती है, वो और ज़्यादा स्ट्रगल फिर ऐसे पूरी लाइफ टाइम उनकी वर्स्ट लिविंग कंडीशंस के लिए ड्यू टू इन्फ्लेशन एक तरीके से हो जाती है। फाइनली, with passage of time, the inflation results in gradual decline of human dignity by rendering them homeless and sometimes even forcing them to beg. तो मतलब कई बार तो इन्फ्लेशन बढ़ने से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है कि उनको बेगिंग तक अडेप्ट करनी पड़ती है। Poverty as a social problem. Global Multidimensional Poverty Index 2019 (MTI) has revealed that there are vast inequalities across countries and among the poorer segments of societies. तो poverty एक सोशल प्रॉब्लम तो है ही, देखते हैं कि उसके बारे में और क्या क्या इम्पैक्ट, किस तरीके से वो एक सोशल प्रॉब्लम का रूप ले लेती है। तो फर्स्ट वन इज कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो 2019 का, उसने रिवील किया है कि कंट्रीज के अक्रॉस वास्ट इनइक्वालिटीज है पुअर सेगमेंट्स के अंदर सोसाइटीज में। एज पर द इंडेक्स 1.3 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड आर स्टिल मल्टी डायमेंशनली पुअर। 1 to 3 मतलब 1 बिलियन से 3 बिलियन पीपल अभी भी विश्व में मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनली पुअर implies that poverty is defined not simply by income but by number of indicators including poor health, poor quality of work and the threat of violence. तो क्या क्या आता है इसमें? मल्टी डायमेंशनली पुअर अगर कोई है तो उसकी इनकम को कंसिडर किया जाएगा, और बाकी इंडिकेटर्स हैं वो है हेल्थ, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क जो करते हैं, और क्या उनके वो कितना वल्नरेबल है टुवर्ड्स वायलेंस। ठीक है, अब देखते हैं हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आता है पॉवर्टी का। Likely to have many kinds of health problems, including infant mortality, earlier adulthood mortality, and mental illness, and then they are also more likely to receive inadequate medical care, discrimination, unfair treatment. ठीक है, effects on society as a whole. पूरी society पे as a whole क्या impact आता है? Poverty is a major cause of social tensions and threatens to divide nation because of the issues of inequality. In particular, income inequality. This happens when wealth in a country is poorly distributed among citizens. So अगर किसी country में wealth poorly distributed है तो वहाँ पे लोग जो deprived conditions में अपना जीवन निकाल रहे हैं एक्चुअली वायलेट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं सोशल ऑर्डर को, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट होती है और इवन की डिवीजन भी हो सकता है, क्योंकि वो नेशन अपनी जो वेल्थ है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने में फेल रहता है। ठीक है, The poor are more likely to be homeless and unable to buy their own home. Many poor families spend more than half their income on rent, and they tend to live in poor neighborhoods that lack job opportunities, good schools, and other features of modern life that wealthier people take for granted. जो हम लोगों को या हमारे मतलब हमारा जो कंडीशन है उसमें भी हम बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं बोलूँगी मैं, बट देन वी स्टिल टेक द थिंग्स फॉर ग्रांटेड जो हमें मिल रही है, जो किसी और को जिसके लिए दे मे बी लॉन्गिंग फॉर, है ना।
तो क्योंकि वो हमें चीज़ें मिल रही हैं और हम उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कुछ लोग उस चीज़ों के लिए भी तरस रहे हैं, ठीक है, जैसा कि नहीं होना चाहिए। द लैक ऑफ एडिक्वेट हाउसिंग फॉर पुअर रिमेन्स मेजर नेशनल प्रॉब्लम, इवन वर्स इज द केस फॉर कंप्लीट होमलेस पीपल। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी ऑन चिल्ड्रन। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं पॉवर्टी के चिल्ड्रन पे? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज एंड इनकम रिफ्लेक्ट ऑन देयर लैक ऑफ एजुकेशन, malnutrition, violence at home and outside, child labor, disease of all kinds transmitted by family or through the environment. These problems weaken their ability to do well in school and stable employment as adults, helping to ensure that poverty will stick with the society across generations. तो क्या है कि क्योंकि जो गरीब फैमिली के बच्चे होते हैं उनको एक तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, जैसे हर किसी फैसिलिटी का, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन हो, चाहे वो स्कूल, जिन स्कूल में वो जाते हैं आपने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल में वो लोग जाते हैं और उनकी पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी कोई खास होती नहीं है ना, मोस्ट ऑफ द इंडिया में, ठीक है। उसके और इवेंचुअली वो और क्या क्या फेस करते हैं? लैक ऑफ एजुकेशन फेस करते हैं, माल न्यूट्रिशन फेस करते हैं, घर पे वायलेंस, ज़्यादातर इस तरीके के केसेस डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के जो बहुत ही एब्सोल्युटली कॉमन रहते हैं गरीब परिवारों में। मार पिटाई काफ़ी रहती है आपस में नेबर्स के साथ, चाइल्ड लेबर उनको झेलना पड़ता है और डिजीज़ हर तरीके की के लिए वो वल्नरेबल रहते हैं, और चाहे वो डिजीज़ फैमिली के थ्रू ट्रांसमिट हो या इन्वायरमेंट के थ्रू, वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं। और इनसे क्या होता है कि उनकी जो एबिलिटी है आगे बढ़ के परफॉर्म करने की, चाहे वो स्कूल में परफॉर्मेंस हो उनकी या फिर आगे लाइफ में जाकर उनकी एम्प्लॉयमेंट एज अ अडल्ट, है ना, उनको उसमें भी प्रॉब्लम आती है। और ये सब चीज़ें इंश्योर करते हैं क्योंकि आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, आपको स्किल्स अच्छी नहीं हुई, आपकी पढ़ाई ढंग से नहीं हुई पहले से, तो आपको एम्प्लॉयमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी। और ये चीज़ें इंश्योर करते आते हैं कि फिर जनरेशन टू जनरेशन जो है पॉवर्टी वो लीड करती जाए, उसके साथ उनकी फैमिली के साथ स्टिक करे फ्रॉम बाय जनरेशन टू जनरेशन। तो यही एक विशियस साइकिल क्रिएट होता जाता है, ठीक है। Effects of poverty on education. Education increases individual earnings. Education increases earning by roughly 10% each in additional year of schooling. तो क्या हम ये फाइंडिंग्स हैं कि एजुकेशन का क्या इफेक्ट होता है पॉवर्टी पे? तो फाइंडिंग्स ये है कि 1 साल की स्कूलिंग से, हर बढ़ते 1 साल की स्कूलिंग से आपकी जो इनकम है वो 10% से बढ़ जाती है। क्या मतलब है कहने का कि अगर कोई पर्सन ने से 11th किया है और उसके बाद उसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ली, तो अगर उसकी इनकम 100 रुपये है, तो अगर उसने 12th किया होता तो उसकी इनकम 110 रुपये होती। तो हर बढ़ती एजुकेशन की ईयर के साथ आपकी इनकम 10% से बढ़ जाती है, विच इज मतलब अब किसी की इनकम 100 रुपये तो होती नहीं है भाई, तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहता है एजुकेशन का। तो जितना ज़्यादा इनकम होगा उतनी ज़्यादा उसका 10% का वैल्यू होगा और उतना ज़्यादा उसका इंक्रीज होगा, ठीक है। एजुकेशन रिड्यूसेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज रिड्यूस करने में हेल्प करती है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्वायर करने में उसका एड होता है। इफ वर्कर्स फ्रॉम पुअर and rich background receive the same education, disparity between the two in working poverty could decrease by 39%. तो अगर एक पर्सन जो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और एक रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उनको सेम एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो जो उनका गैप है दोनों का वो 39% से डिक्रीज हो सकता है इकोनॉमिक गैप, ठीक है। एजुकेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अचीव्ड रैपिड एंड कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एटलीस्ट 40% ऑफ इट्स एडल्ट पॉपुलेशन बीइंग लिटरेट. तो किसी भी कंट्री में जिसको ईयर ऑन ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, 40% उसकी एडल्ट पॉपुलेशन लिटरेट होनी चाहिए.
Poor children typically go to badly maintained schools with inadequate facilities where they receive poor coaching. तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बात कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होता है, फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं होती है, जहाँ पे उनको पुअर एजुकेशन मिलती है. They are less likely than wealthier children to graduate from high school or to go to a college. तो एक हायर क्लास के पर्सन के या वेल्दी क्लास के पर्सन के हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने में या कॉलेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू लोअर कास्ट या फिर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करने वाले बच्चों के. Their lack of education in turn restricts them and makes their own children to suffer from poverty. Once again, helping to ensure vicious cycle. Let me emphasize once again because आगे जाके मैं repeat करवाऊंगी, ठीक है? Of sadly continuing poverty across generation. तो इस जब एक पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको इवेंचुअली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का लैक होगा, फिर उसका वेजेस कम होंगे और सेम उसके बच्चे भी फिर उसी पॉवर्टी रिडन कंडीशंस में वही सेम सिचुएशन से निकलते हुए वही सेम रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर उनके बच्चे. इस तरीके से विशियस साइकिल जो है वो चलता रहता है गरीबी का, ठीक है. Effects of poverty on terrorism. It's important to note that most of the time terrorists do come from poorer countries with high unemployment and that terrorist organizations often provide much higher salaries than other jobs if other job is available at all. तो क्या होता है कि जो पुअर कंट्रीज होती हैं जैसे कि आप अफगानिस्तान और आज के टाइम पे ले सकते हैं, वहाँ की इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा क्रम्बल्ड है. तो ऐसी कंट्रीज़ में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर हों भी तो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा मतलब उनको रिनमरेशन मिलती है. तो इसीलिए लोग टेररिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो पुअर पीपल होते हैं. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इंटरेक्ट विद द डिसीजन टू बिकम अ टेररिस्ट. पर्सनल एंड कल्चरल आइडियल्स, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज मटीरियल एंड सोशल गेन, रेपुटेशन एंड फेम फॉर फाइटिंग द इम्पीरियलिस्ट ऑफ एंटरिंग टेररिज्म. ठीक है, तो टेररिज्म के लिए और क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक तो कल्चरल आइडियल्स, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स जो कि एक्चुअली मिसगाइडेड प्रिंसिपल्स और वैल्यूज उनको बताए जाते हैं और उनको क्या लगता है कि हमें सोशल रेपुटेशन का गेन होगा, हमें फेम मिलेगा अगर हम किसी ऐसी ताकत के अगेंस्ट फाइट करेंगे जिसे हम इम्पीरियलिस्टिक मानते हैं, जो हमारे ऊपर जबरदस्ती राज कर रही है. ठीक है. इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी ऑन इकोनॉमी. Among the effects of poverty, its impact on the economy of the country is a major issue of concern. Mainly, the number of people existing in poverty influences employment rates. Without an education, people are unlikely to find lucrative or rather a decent paying job. तो क्या रहता है कि इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी क्या रहता है इकोनॉमी पे. ये क्या कहते हैं कि ठीक है, तो इफेक्ट्स क्या रहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट पे इफेक्ट रहता है. फिर एजुकेशन के बिना पीपल वोंट फाइंड लुक्रेटिव एंड डिसेंट पेइंग जॉब्स, है ना. अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल डेफिनेटली स्लो डाउन कंट्रीज प्रोग्रेस इन ऑल एस्पेक्ट्स. पॉवर्टी कंट्री की प्रोग्रेस हर एस्पेक्ट में इवेंचुअली जिन कंडीशन को पॉवर्टी लीड करती है जैसे कि लैक ऑफ एजुकेशन, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे इवेंचुअली एक कंट्री एज अ होल, एक नेशन एज अ होल की प्रोग्रेस हैम्पर होती है. ठीक है. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी. तो सबसे पहले तो इनइक्वालिटी आ जाती है. इनइक्वालिटी कैसे कि हायर रिच सेक्शन हो जाता है, पुअर सेक्शन हो जाता है. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. फिर इसी से लीड करते हुए आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैसिलिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज, है ना. तो ये सब इनइक्वालिटी हो जाती है. और इनइक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज के केस में भी हो जाती है क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज रिच के लिए अवेलेबल है उतनी अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज पुअर लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती. कंटिन्यूएशन ऑफ विशियस साइकिल. तो अभी मैं आपको पिछले स्लाइड्स में एम्फसाइज करते आई हूँ विशियस साइकिल को. आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप पीछे वाले स्लाइड्स इवेंचुअली जाके देख सकते हैं दोबारा, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे
चीजों को पढ़ते हुए बहुत ऑर्गेनिकली आपको विशियस साइकिल समझ आएगा कि एक के बाद एक जनरेशन और जनरेशन जब उस चीज से बाहर ही नहीं आ पाए, वन थिंग इज लीडिंग टू अनदर, और वही पॉवर्टी, उनकी जो गरीबी है वो कंटिन्यू होती जा रही है जनरेशन और जनरेशन, उसे विशियस साइकिल कहते हैं। ये मैंने बहुत ऑर्गेनिकली समझाया है पिछली स्लाइड्स में। Who are worst affected by poverty? तो कौन worst affected है? सबसे ज्यादा vulnerable है women and children, और उसके बाद भी there are old age people, senior citizens, है ना। अर्बन पॉवर्टी के बारे में देखते हैं, स्पेसिफिक इश्यूज दैट अर्बन पुअर फेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल प्रोटेक्शन। तो ऐसे कौन से स्पेसिफिक इश्यूज हैं जो कि अर्बन एरिया में पुअर पॉपुलेशन को फेस करने पड़ते हैं पर्सपेक्टिव से सोशल प्रोटेक्शन की, ठीक है। Around 1 billion urban dwellers live in informal settlements, most of which are affected by informal, मतलब वो जो स्लम एरियाज हो गए हमारे, है ना, वो कोई उनका खुद का घर वर, मतलब लैंड उनकी थोड़ी होती है, वो तो जो खाली लैंड होती है उस पे एक्चुअली झुग्गियाँ डेवलप करने लग जाते हैं और वो स्लम एरिया हो जाता है, गवर्नमेंट ओन्ड होती है बेसिकली। पुअर क्वालिटी, ओवर क्राउडेड हाउसिंग, ओवर क्राउडेड तो रहती है, जरा सी जगह में आपको 10-12 झुग्गियाँ मिल जाती है, और पुअर क्वालिटी तो इवेंचुअली होगी क्योंकि सेपरेशन नहीं होगा ना, कि किचन भी वही है, उनका खाना भी वही बन रहा है, फिर वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज नहीं होती हैं, एंड देन सो भी वही रहे हैं, सब कुछ, मतलब, है ना। रिस्क ऑफ फोर्सफुल एविक्शन, फोर्सफुल एविक्शन हो सकती है क्योंकि वो उनका ओनरशिप नहीं है वहां पे, तो उनको एविक्ट किया जा सकता है कभी भी किसी और काम के लिए जब उस लैंड को यूज करना हो, और उनके कोई लीगल राइट्स इस टाइम पे नहीं होते हैं सच, है ना। लैक ऑफ सेफ रेडिली अवेलेबल वाटर सप्लाईज, अब ऐसी जगहों पे म्यूनिसिपैलिटी की कुछ भी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, बी इट वाटर सप्लाई या फिर वो जो सीवरेज वगैरह होते हैं, फिर वो जो वेस्ट कलेक्शन होता है वो भी नहीं होता है, ठीक है। पुअर प्रोविजंस फॉर सैनिटेशन, ड्रेनेज एंड सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, ये जो मैंने अभी आपको बोला, ठीक है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, इमरजेंसी सर्विसेज एंड पुलिसिंग, देखो इन जगहों पे किसी भी तरीके की फैसिलिटीज का पहुंचना मुश्किल ही रहता है, ठीक है। डिफिकल्टी एक्सेसिंग गवर्नमेंट स्कूल्स, तो गवर्नमेंट स्कूल्स पे को एक्सेस करने के लिए भी डिफिकल्टी रहती है। लोकेशन एट हाई रिस्क ऑफ डिजास्टर्स एंड विद रिस्क लेवल्स इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, अब जैसे किसी का पक्का हाउस है, प्रॉपर वेल मतलब कंस्ट्रक्टेड हाउस है, तो अगर फ्लड आ जाता है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, या फिर ऐसे लोगों को जो स्लम्स में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्लम्स वालों को क्लाइमेट चेंज फैक्टर्स ज्यादा इफेक्ट करेंगे, है ना। Urban poor are exposed to serious contingencies, both individual such as illness and underemployment, and collective lockdowns, floods, cyclones, financial crisis, and so on. ठीक है। There is thus a need for better social protection in urban areas. तो urban areas में ज्यादा protection की जरूरत है, social protection की। Universalizing the public distribution system in urban slums would be a step forward. It can be done under the National Food Security Act, but food grain rations do not take people very far. वैसे तो जरूरत भी है कि एक strong PDS system हो, पर PDS system लोगों को बहुत दूर तक नहीं ले जाता है in terms of improving their conditions. Employment based support is one way of doing more. अगर employment based support मिले वो एक तरीका हो सकता है चीजों को improve करने का, उनकी condition को improve करने का। It has two major advantages. क्या employment based support के advantages? Self targeting and the possibility of generating valuable assets or services. ठीक है जी, next देख लेते हैं। Poverty alleviation initiatives. तो पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रखे हैं गवर्नमेंट ने, या सोसाइटी में क्या इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग है। तो पहला है रूरल रोड कनेक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा मेजर रोल होता है क्योंकि सामान इधर से उधर जाता है, उससे इकोनॉमी में एक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो क्या है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
वेरी गुड स्कीम, वेल इम्प्लीमेंटेड। अगर आपको किसी स्कीम की कभी तारीफ करनी हो तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज वन सच स्कीम जिसको आप बहुत अच्छे से दिखा सकती, क्योंकि इसने सीरियसली बहुत अच्छा चेंज लेकर आई है कनेक्टिविटी में, स्पेशली रूरल एरियाज में, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है इस स्कीम का। Was launched by Government of India to provide connectivity to unconnected habitations as part of a poverty reduction strategy. तो अच्छी स्कीम है, और आप देखेंगे कि सही में रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है इसके चलते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एंडेवरिंग टू सेट हाई एंड यूनिफॉर्म टेक्निकल एंड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड फैसिलिटेटिंग पॉलिसी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एट स्टेट लेवल in order to ensure sustainable management of rural road network. This program covers all villages with population more than 1,000 and villages in hilly and tribal areas with population more than 500. ठीक है ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में एक बार फिर बात कर लेते हैं। प्रॉपरली फंक्शनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज टारगेटेड टू पुअर हाउसहोल्ड्स इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। Therefore, an effective way of raising rural incomes and ensuring food security to the poor households is as an assured supply of adequate quantity of food, grains and other essential commodities at subsidized price, that is, at price which are lower than the market prices. तो ये फंक्शन होता है जी PDS का। क्या है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर टारगेटेड हाउस होल्ड होते हैं, पुअर हाउस होल्ड, वो उसको मेनली वो बेनिफिशियरीज होते हैं, और ये भी एक स्ट्रेटजी है पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। इसमें होता क्या है कि अश्योर्ड सप्लाई दी जाती है एडिक्वेट क्वांटिटी के, मतलब जितना उनको जनरली चाहिए या उससे भी कई बार ज़्यादा ही एडिक्वेट क्वांटिटी में उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं PDS के अंडर, जैसे कि ग्रेन्स के अलावा चीनी, डिटर्जेंट, सोप केक्स, ये सब, ऑयल। ठीक है। प्राइसेस आर लोअर देन मार्केट प्राइसेस तो काफ़ी लो होता है मार्केट प्राइसेस से। अगर किसी ने कोई कभी एनकाउंटर हुआ ऐसा तो यू वुड नो, है ना। अगर किसी के पास FPS का भी इनकाउंटर है, कभी एक्सपीरियंस है फेयर प्राइस शॉप्स का, तो उनके पास भी प्राइसेस लो होते। PDS से ज़्यादा होते हैं फेयर प्राइस शॉप्स में, मतलब रेशन शॉप से, बट हाँ इनके भी लो ही रहते हैं। इरिगेशन। In order to reduce the poverty in rural areas, agricultural input should be well organized. तो है क्या कि क्योंकि इंडिया एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, अभी भी एग्रीकल्चर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में, तो एक एग्रीकल्चर की जो इनपुट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए, और इरिगेशन उसी का एक पार्ट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ सच इनपुट इज इरिगेशन, हेंस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना was introduced by Government of India with the vision of extending coverage of irrigation. The basic theme of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana is more crop per drop. याद रखेंगे, ठीक है जी। Housing. In order to build house for poor in India under Housing for All by 2022, 2 new schemes were introduced. First one is प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रूरल। इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है बहुत से लोगों को, मेरे जानने वालों में भी हुआ है, आपके जानने वालों में भी हुआ होगा। काफ़ी अच्छी एंड सक्सेसफुल, मेरे हिसाब से सक्सेसफुल एक स्कीम है, पेनिट्रेट कर पाई है ये प्रॉपरली। The mission will be implemented during 2015 to 2022 and will provide central assistance to urban local bodies and other implementing agencies through states or UTs for in situ rehabilitation of existing slum dwellers using land as a resource through private participation, credit-linked subsidy, affordable housing in partnership, सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और इन्हेंसमेंट। तो हाउस की खरीदने के लिए भी, कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी, और उसको और इन्हेंस करने के लिए, मतलब उसमें जैसे और फर्दर कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी, सब में असिस्टेंस की प्रोविजन इसमें है।
Rural electrification. Government of India has launched Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana for rural electrification under DDUGJYRE, Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है ये स्कीम, हैज सैंक्शनड 921 projects to electrify 1,21,225 unelectrified villages. Intensive electrification of 5,92,979 partially electrified villages and provide free electricity connections to 397.45 lakh PPL households. Self-employment schemes के अंदर है प्राइमरीली थ्रू स्वर्ण जयंती ग्रामीण सहरोजगार योजना, यहाँ पे योजना लिखा हुआ है, ये योजना होना चाहिए, ठीक है, इन द रूरल एरियाज थ्रू स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY इन अर्बन एरियाज। तो ये वाली हो गई रूरल के लिए और ये वाली हो गई अर्बन के लिए। स्किल डेवलपमेंट, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इट वॉज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंगेज रूरल यूथ especially below poverty line and SC/ST segment of population in gainful employment through skill training programs, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पॉवर्टी एलिविएशन, अब हम देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या रोल रह सकता है पॉवर्टी एलिविएशन में। दे हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन इन फॉलोइंग वेज, the financial inclusion credit facility to poor is increased. It also saves them from money lenders. तो समझिए कि जब हम अकेले अगर कोई गरीब इंसान है तो उसके पास शायद वो क्षमता ना हो कि वो किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लोन के लिए अप्लाई कर सके, बट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जब लोग मिलकर फॉर्म करते हैं तो उनको लोन्स बैंक दे देती है इजीली। इससे क्या होता है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है मनी लेंडिंग का, जो मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी लेंड करते हैं, उनसे सेफ्टी हो जाती है उन लोगों की। और अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू सेटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो ये सब लोग, अब एक जना अकेला शायद कोई एंटरप्राइज नहीं कर पाएगा अगर वो गरीब है, तो पर सब काफ़ी सारे लोग अगर ग्रुप ऑफ पीपल अगर मिलके चाहें तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके एक एंटरप्राइज खड़ा कर सकते हैं, माइक्रो एंटरप्राइज, जहाँ पे वो खुद ही इन्वेस्ट करेंगे, खुद ही काम करेंगे और शायद थोड़े बहुत और लोगों को भी वो एम्प्लॉयबल कर सकें, है ना। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम undertaken by self-help groups improves employability of members involved. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं जिससे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव होती है। As a result of increased jobs, there is rise in income, which enhances access to food, health services, and overall rise in living standards. तो इवेंचुअली जब जॉब्स मिलेंगी, स्किल्स इन्हेंस होंगी, तो फूड एंड हेल्थ सर्विसेज को भी एक्सेस इंप्रूव होगा और लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इंप्रूव होंगे। एंड विथ मोर वुमेन पार्टिसिपेशन एंड देयर इनहेंस स्टेटस एड्रेसेस इश्यूज सच एज न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, लो लिटरेसी रेट। तो क्या क्या इश्यूज एड्रेस कर पाते हैं ये? न्यूट्रिशन, पॉवर्टी एंड लो लिटरेसी रेट. It is also observed that percentage of below poverty line population is less in the states where there is large number of self-help groups. तो clearly self-help groups का एक positive impact रहता है poverty alleviation में. Next is Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act, MGNREGA and poverty alleviation. चलो, Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act 2005 is an Indian labor law and social security measure that aims to guarantee the right to work. तो क्या गारंटी करता है महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? राइट टू वर्क.
तो इसके अंदर जो भी लोग रजिस्टर्ड होते हैं उनकी तरफ गवर्नमेंट की एक कमिटमेंट होती है कि वो मिनिमम 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल लेबर वर्क उनको प्रोवाइड करेंगे, और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनको वो ड्यूली कॉम्पनसेट करते हैं। ठीक है। 2006 launched in 200 districts, 2008 launched in whole country as MGNREGS scheme. Ministry of Rural Development centrally sponsored, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नॉट 100% फंडेड बाय, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो होती हैं वो 100% फंडेड होती हैं, जो स्पॉन्सर्ड होती हैं वो 100% फंडेड नहीं होती, उसमें स्टेट का भी शेयर होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। It promises to give minimum 100 days of unskilled manual labor to rural households whose adult members volunteer for it. Households are eligible for unemployment allowance if employment not been provided within 15 days of demand. ठीक है। MGNREGA laborers are used for creating durable assets as per local needs. Example: ponds, wells, cattle sheds, granary, vermicompost plants, crematorium, renovation of Anganwadi centers, school buildings. No contractors or machinery is employed. It is completely manual, labor intensive, field of work. In any project, 60% amount of should go towards wages and 40% towards material use. ठीक है। Social audit by the ग्राम सभा at least once every 6 months. तो MGNREGA के अंदर ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट करने का प्रोविजन है every 6 months, जिसमें कि उसका सोशल इम्पैक्ट क्या रहा है, कितने लोगों को वर्क प्रोवाइड हुआ है, कैसा वर्क प्रोवाइड हुआ है, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखी जाती है। Policy shift from trickle down economics to inclusive और pro poor development to reduce poverty. तो ये वाला पार्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत ध्यान से देखें, बिकॉज ये पार्ट जो है सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है, पर ये पार्ट कोई भी डिस्कस इतना डिटेल से नहीं करता है। ठीक है, या फिर इतना डायरेक्टली आपको ये पार्ट और कहीं भी मिलने वाला नहीं है। मैं रिपीट कर देती हूँ। पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स टू इंक्लूसिव और प्रो पुअर डेवलपमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी। एंड नॉट ओनली इज इट इम्पॉर्टेंट, ये पार्ट ना समझने वाला पार्ट है। ठीक है, तो पॉलिसी शिफ्ट कहाँ से है? फ्रॉम ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स टू कहाँ पे? इंक्लूसिव और पुअर डेवलपमेंट, प्रो पुअर डेवलपमेंट टू रिड्यूस poverty. तो फ्रॉम ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स टू इंक्लूसिव और प्रो पुअर डेवलपमेंट। तो पहले समझते हैं कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स क्या है, ट्रिकल थ्योरी क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल trickle down to the poor in the form of more employment opportunities, greater productivity and higher wages. तो क्या ये थियोरी कहती है कि हम अगर ऊपर से शुरू करें, जैसे कि हम इन्वेस्ट करें ज़्यादा इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल अब अगर हम डैम्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज क्रिएट कर रहे हैं और कैपिटल अलाउ कर रहे हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, तो वो एक्सपेंड करेंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगी, जो कि इवेंचुअली ट्रिकल डाउन कहाँ पे होंगी, किनको प्रोवाइड होंगी वो जॉब अपॉर्चुनिटीज? जो गरीब लोग हैं या जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है उनको। तो ये हो गई ट्रिकल डाउन थ्योरी। ठीक है, व्हाई ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल्ड? ट्रिकल डाउन थ्योरी के टाइम ऐसा क्या हुआ कि हमें वहां से शिफ्ट करके इंक्लूसिव और प्रो पुअर डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना पड़ा पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। तो वो क्यों फेल हुई? उसका रीजन है ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी रही है, आज भी है एग्रेरियन इकोनॉमी। तो उससे क्या होता है कि ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर रिस्ट्रिक्टेड रहता है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, देन देयर इज रिस्क ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स जो कि इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, मिसिंग लिंक क्या है? अब मिसिंग लिंक की क्या थ्योरी है? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इट गॉट बाईपास्ड। इंडिया में एग्रीकल्चर, देखो कहीं भी एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंटरलिंक्ड है। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ होगी, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या फिर
लगा लीजिए कि कोई भी और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो वहाँ का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोवाइड करेगा, तो वहाँ से इवेंचुअली लेबर जो होगी एग्रीकल्चर में, जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा रहता है, वो एब्जॉर्ब कर पाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बट इंडिया में क्या हुआ, एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर, विच मीन्स कि प्राइमरी सेक्टर से सीधा टर्शरी सेक्टर पे जंप हुआ। इकोनॉमी का जो सेकेंडरी सेक्टर है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, वो हमारा उतना डेवलप नहीं हो पाया। इसीलिए आजकल गवर्नमेंट जो है वो मेक इन इंडिया और इतना ज़्यादा इंसेंटिवाइज करती है, PLI स्कीम्स लेके आई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। इंक्लूसिव ग्रोथ, अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे तो ये इन सब चीज़ों के कारण जो फेलियर हुआ है ट्रिकल डाउन थ्योरी का, जो उन्होंने सोचा था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होंगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एकदम सेकेंडरी सेक्टर पे, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर को स्किप करते एकदम टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विसेज पे हम लोग जो एंटर कर गए, उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो इतनी हो नहीं पाई प्रोवाइड, जो जिसका कि ट्रिकल डाउन थ्योरी में जिक्र किया जाता है। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगी कि ऐसा क्यों हुआ कि टर्शरी सेक्टर पे क्यों जंप कर गई। तो जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उसमें क्या है कि वो लोग हमसे काफी पहले उनका एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ हुआ। किसी भी इकोनॉमी का पहले ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, तभी वो आगे और फर्दर सेक्टर्स में ग्रो कर पाती है। तो उसी बेसिस पे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनका, पहले उनका प्राइमरी सेक्टर ग्रो हुआ, फिर उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रो हुआ। फिर उनका जब टर्शरी सेक्टर ग्रो होने की बारी आई, तब हम ट्रांजिट कर रहे थे सेकेंडरी सेक्टर पे। जब उनका टर्शरी सेक्टर बूम कर रहा था, तब हम ट्रांजिट कर रहे थे सेकेंडरी सेक्टर पे। तो उन्होंने इंडिया में उनको चीप लेबर जिनसे वो सर्विसेज सोर्स कर सकते थे, वो प्रोवाइड होने लग गई। तो इसीलिए BPO सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का में उन्होंने यहाँ पे आके प्रोवाइड करना स्टार्ट किया अपॉर्चुनिटी। तो वहीं पे ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉय हुए और वहां पे टर्शरी सेक्टर पे शिफ्ट हो गया बिना सेकेंडरी सेक्टर इनफ डेवलप हुए। तो इसी कारण से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्किप हो गया, इट गॉट बाईपास्ड। ठीक है, अब इंक्लूसिव ग्रोथ समझते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ मस्ट बेनिफिट द कॉमन पीपल बाय एंड लार्ज। इट शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स मासेस एंड नॉट क्लासेस। मतलब एक मास ओरिएंटेड ग्रोथ होनी चाहिए, ना कि क्लास ओरिएंटेड। क्लासेस मतलब पॉलिटिशियंस को सिर्फ फायदा करे ऐसी ग्रोथ, या फिर क्रॉनिक कैपिटलिज्म को फेवर करे ऐसी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। ग्रोथ मासेस के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ का देख लेते हैं। ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट प्लस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ना कि क्लास बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इज इक्वल टू इंक्लूसिव ग्रोथ। 11th 5-year प्लान के टाइम पे थीम वाज टुवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इस पे MCQs भी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में और आगे भी आ सकते हैं, तो ये थीम याद रखें। 11th 5-year प्लान का थीम था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। Inclusive growth is a growth process which yields broad-based benefits and ensures quality of opportunity for all. तो 11th 5-year प्लान में क्या डेफिनेशन दी गई थी इंक्लूसिव ग्रोथ की, जो आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ ग्रोथ प्रोसेस which yields broad-based benefits and ensures quality of opportunity for all. ठीक है, अब देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के क्या फायदे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मासेस, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। एम्प्लॉयमेंट और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होंगे, वेजेस मिलेंगे, पैसा आएगा, इनकम जनरेट होगी, तो परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। रिड्यूसिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन मासेस। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, हम पीछे चलते हैं अगर स्लाइड में, तो हमने टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टी में देखा था कि इट रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर अ पर्सन डज नॉट हैव द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम needed to meet the minimum requirement for one or more basic living needs over an extended period of time. तो जब पर्सन के पास पैसा नहीं होता है, सीधे सीधे बात बोली जाए तो, जब किसी के पास
वो मनी रिसोर्स ही नहीं है, तो वो कैसे मतलब अपनी नीड्स को फुलफिल करेगा। तो वो वाली एब्सोल्यूट पॉवर्टी इंक्लूसिव ग्रोथ से एलिमिनेट होती है। रिड्यूसिंग इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल इनइक्वालिटीज, तो रीजन बेस्ड इनइक्वालिटीज भी एलिमिनेट करने में हेल्प करता है इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रहता है। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए टाइम के साथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर। बेटर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन इवन रहता है, बेटर रहता है। अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, और इंक्लूसिव ग्रोथ का ये भी पार्ट है कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर से जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो शिफ्ट हो जाए बाकी सारे सेक्टर्स पे। अब लास्ट हम इस्टेब्लिश करेंगे रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी रिडक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी इनइक्वालिटी डेवलपमेंट नेक्सस। तो क्या रिलेशन है बिटवीन पॉवर्टी रिडक्शन एंड डेवलपमेंट में? तो जहाँ जितनी पॉवर्टी होगी डेवलपमेंट उतनी ही स्लो होगी, और डेवलपमेंट स्लो होगी तो पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होगी? तो एक तो ये नेक्सस है। और पॉवर्टी और डेवलपमेंट के बीच में जो एक और चीज आ जाती है वो है इनइक्वालिटी। इस नेक्सस में इनइक्वालिटी भी आ जाती है। कैसे? कि जब जो इस तरीके की डेवलपमेंट होती है, जैसे कि जॉबलेस ग्रोथ, आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा टर्म यूज हो रही है। तो जॉबलेस ग्रोथ मतलब जो रिच है वो और रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर है वो और पुअर होते जा रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ तो हो रही है, ओवरऑल जीडीपी तो बढ़ रहा है, पर उसका फायदा लोगों तक पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या साइन है? ये इनइक्वालिटी का साइन है। इनइक्वालिटी इन स्फीयर्स ऑफ ऑल द amenities being provided, all the facilities, goods and services, हर तरीके की इनइक्वालिटी, चाहे वो फूड में हो, चाहे वो हेल्थ केयर में हो। ठीक है, कुछ लोगों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है हेल्थ केयर के लिए, और कुछ लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े बिल्स पे कर रहे हैं, है ना, छोटी छोटी चीजों के लिए। ठीक है, तो यही था पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और डेवलपमेंट का नेक्सस। कैसे एक वन थिंग लीड्स टू अनदर थिंग्स, और वन थिंग स्लो डाउन अनदर। पॉवर्टी होगी तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी और इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी। और अगर डेवलपमेंट हो भी रही है तो जरूरी नहीं है कि पॉवर्टी एलिमिनेट हो रही हो उसी रेट पे, क्योंकि इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, और इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, तो इस वजह से पॉवर्टी रिडक्शन में प्रॉब्लम आएगी और ओवरऑल डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो ये था नेक्सस। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।